Fine. So friends, in the last turn, I told you that we will start with question number 20 in the next class. And at the same time, I told you that there is one very beautiful question given in your NCERT on the base, and that question also I want to explain. एक्चुअली जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन मिल गया. शायद जो मैं ढूंढ रहा था वो perhaps that is the question of linear equation in two variables. Perhaps that is a question of linear equation in two variables. Anyways, let us discuss question number 20 once again. Question number 20 is saying two taps running together can fill a tank in 1/13 आवर्स, यानी कि 40/13 आवर्स में दोनों टैप मिलके किसी बाल्टी को भर देते हैं. एक ऐसे बाल्टी है भाई, एक ये बाल्टी है, एक ये टैप है यहाँ पे और एक ये टैप है यहाँ पे. दोनों टैप मिलके इस बड़ी सी बाल्टी को 40/13 आवर्स में भर देते हैं. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? If the time, if one tap takes 3 hours more than the other tap, तो अगर एक टैप का मैंने टाइम t आवर्स मान लिया तो दूसरे टैप का टाइम जो होगा वो t+3 आवर्स होगा. ठीक है, then I have to time taken by each tap to fill the tank. ठीक है, वो अपन निकाल लेंगे. अब यहाँ पे बात क्या होती है, एक इक्वेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि t+t+3 शुड बी इक्वल टू 40/13. यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 26t+39 इज इक्वल टू, एक कोई इक्वेशन जो आपके दिमाग में आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि सर t+t+13 शुड बी इक्वल टू 40/13. यहाँ से सॉल्व किया तो मुझे मिला, कितना मिला भाई, ये 3 है. हाँ, तो यहाँ से मिला 26t+39 इज इक्वल टू 40. दैट गिव्स मी t इज इक्वल टू 1/26 आवर्स. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. यहाँ पे वी यूज द, हाँ बोलिए सर. अब तक आपने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर सकते हो? मतलब लेट आया सर. नहीं, वॉच द रिकॉर्डिंग्स. आई स्टार्टेड द क्लास एग्जैक्टली एट 4:30. प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स. तो यहाँ पे यू कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट. You cannot use this concept because the problem is this question will not be solved like that. यहाँ पे आपको the concept that you have to use is the concept of unitary work. एक घंटे में पूरा का पूरा टैंक कितना भरा ये कैलकुलेट करेंगे. एक घंटे में पहले टैप ने कितना काम किया वो कैलकुलेट करेंगे. एक घंटे में दूसरे टैप ने कितना काम किया वो कैलकुलेट करेंगे. दोनों को ऐड करेंगे. देन आई विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व. लेट अस नाउ डिस्कस द क्वेश्चन. लेकिन आपकी जो ये t+t+13 है वो वैलिड क्यों नहीं है? वो बेटा ये वैलिड क्यों नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ अनदर 1 hour, so that I won't be explaining now. This concept we have studied in class 7th, class 8. That concept I won't be explaining now. I am extremely sorry for that because we are bound by some syllabus constraints also. So I can't explain you. If you really want, if you are very enthusiastic, if you want to know that, I will suggest you to study direct and inverse variation. Study direct and inverse variation once. If you don't get, tell me. I will call you separately one day and then I will explain you. Okay? So it's not possible for me to explain the concept of this thing in the class. I'm extremely sorry for that. Okay? Now what we will be doing, कर लो भाई. Let time taken by tap A is equal to t hours. On the other hand, time taken by tap B is equal to t+3 hours. ठीक है. So in 1 hour portion of tap filled, एक सेकंड रुको जरा.
So portion of tap filled in 1 hour, portion of tap filled by tap A, या आप इसको ऐसा लिखो, work done by tap A in 1 hour will be equal to 1 upon T. by T आवर्स में पूरा का पूरा टैंक को फिल करता है, तो 1 घंटे में 1 अपॉन T टैंक को फिल करेगा, 1 अपॉन T पोर्शन इट विल फिल. सिमिलरली वर्क डन बाय टैप B in 1 hour will be equal to 1 upon T plus 3. Now, according to the question, work done in 1 hour will be equal to 1 upon, work done in 1 hour will be equal to 1 upon 40 by 13. ये 40 by 13 कैसे आया सर? 3 1 by 13 को हमने लिख दिया 40 by 13, which is equal to 13 by 40. I'm having one equation. So finally what I will have 1 upon T plus 1 upon T plus 3 is equal to 13 by 40. From here you can solve for T, and whatever will be the value, that will be your answer. Remember, it will be a quadratic equation, so you will get 2 values of T. One you have to reject. Yes. I wanted to say the same thing. Actually, I was looking for that question only. Jill, I was looking for that question only, but that question I didn't find here. ठीक है. So now हो सकता है एक वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी पड़े, एक वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी पड़े. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्दर, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू. ठीक है. लेट अस मूव टू द, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क. नो सर, नो डाउट. चलो, let us move further. Before moving further, one thing I would like to tell you. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was 90. Find the number of articles produced. Find the number of articles produced and the cost of each article. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए. Then I will explain you. Please try. हो गया भाई? The number of articles are 6. Number of, what is the equation that you got? Sir, 2x square. 2x plus 3 equals to 90. Equal to 90. Was this the equation you got? X multiplied by 2x plus 3 equal to 90? Yes, sir. क्या जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको यही इक्वेशन आया है? किसी का अगर ये इक्वेशन नहीं आया हो तो प्लीज बता दो भाई. हाँ सर, यही आया. 2x square plus 3x minus 90 will be equal to 0. सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, एक वैल्यू 6 आएगी, दूसरी वैल्यू -15 आएगी शायद, आई एम नॉट श्योर.
तो x की वैल्यू 6 आएगी. यू टेक द वैल्यू ऑफ x एज योर पॉजिटिव. एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी वैल्यू निगेटिव आएगी. कौन सी पॉजिटिव? एक मिनट. एक वैल्यू 6 आएगी, दूसरी वैल्यू 30 -30 आएगी. तो -30 को रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लो. सो यू विल गेट x इक्वल टू 6 एज योर आंसर. If you are taking x equal to 6 as your answer, so the total number of articles produced will be 6, and the cost of production of one article will be equal to ₹15. So this is how the question is to be done, right? Moving to the next portion. इसका किधर का क्वेश्चन है? क्या सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है? बेटा एनसीईआरटी सॉल्व करवाई जाती है आपके यहाँ. Section A, subjective questions, exercise 1, section A, question number A1 to A8. Any question in which you have doubt? First, any question in which you have doubt? बोलो यार, आवाज नहीं आ रही क्या? सर नो सर. ठीक है सर. चलो, आई एम मूविंग फर्दर. Section B, any question you have doubt? B1 to B5. Section B, B1 to B5, any question in which you have doubt? Sir, B5. B5, okay. और कोई? B2, okay. और कोई? नो सर. ठीक है सर. चलो देखो. show that the condition that one root is twice the root of the other for the quadratic equation this is equal to this. मुझे एक कंडीशन निकालनी है such that one root is twice that of the other. क्वेश्चन नंबर B2 की बात कर रहे हैं हम लोग. एक्सरसाइज नंबर 1 सेक्शन B, सब्जेक्टिव क्वेश्चन. एक्सरसाइज नंबर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर B2. बात क्या कर रहे हैं ये कि वन रूट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. सर अगर पहले रूट को अल्फा मानूं तो दूसरा रूट मेरा 2 अल्फा हो जाएगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इफ आई इमेजिन फर्स्ट रूट एज अल्फा, सो माय सेकंड रूट विल बी 2 अल्फा. ठीक है सर. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर. एक काम करो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो. सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस p. that gives me alpha is equal to minus p upon 3. that gives me alpha is equal to minus p upon 3. put alpha equal to minus p upon 3 in the given equation. क्यों पुट किया मैंने? क्योंकि सर हमने एज्यूम किया था ना अल्फा एंड 2 अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. रूट्स क्या होती हैं? रूट्स वो वैल्यू होती है जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. लिखिए यहाँ पे पुट अल्फा इक्वल टू माइनस p बाई 3 इन गिवन इक्वेशन. तो क्या मिलेगा सर? व्हाट आई विल गेट? माइनस p अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस p इंटू p अपॉन 3 प्लस q इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 9 प्लस p बाई 3 प्लस p स्क्वायर बाई 3 प्लस q इज इक्वल टू 0. सर एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा. एलसीएम लेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा. 9 एलसीएम ले लिया. p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर plus q will be equal to 0. So what I will get? Have I done some mistake? सर उधर -1/3 आएगा. मतलब minus p into p by 3. Minus p into p by 3. Thank you. Minus p into p by 3. That will be minus p square by 3. ठीक है भाई. Thank you. So this will be minus 2p square. It will be finally. एक मिनट रुक जाओ भाई. minus 2p square upon 9 plus q
will be equal to 0. So finally I will get 2p square is equal to 9q. 2p square is equal to 9q. This is what I was required to solve. हो गया भाई solve? हो गया भाई solve? चलो नेक्स्ट. किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो भाई जल्दी से. कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा लगता. नहीं सर नहीं है. लगता है आज किसी ने सवाल किए ही नहीं है. तो नहीं किए तो बेटा now I can't wait and can't give you guys time. बहुत टाइम दे दिया बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है भाई माइनस ऑफ 2b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस c इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इक्वल देन शो दैट b स्क्वायर इक्वल टू ac. आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने तब किया था जब हम लोग शीट डिस्कशन कर रहे थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है. बट ठीक है. क्या बोल रहे बेटा? हाँ सर किया था ना. इफ द रूट्स आर इक्वल, देखो दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के. इफ द रूट्स आर इक्वल तो यहां से आप एक काम कर सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर दो. बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. यहां से आपकी कंडीशन आ सकती है. कुछ जगलरी करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करना पड़ेगा. फाइनली आपके पास बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर बचेगा. फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन आना चाहिए वो ये आना चाहिए b रेज टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर ac इज इक्वल टू 0. ये एक्सप्रेशन आपके पास फाइनली इन द एंड आना चाहिए. then you can say that b square minus ac whole square equal to 0 और b square equal to ac. ये तो हो गया भैया पहला तरीका सवाल करने का. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस बिकॉज इसमें आपको d इक्वल टू 0 करना है. दूसरा तरीका क्या है सर? वही जो मेथड मैं आप लोगों को इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. द रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2b multiplied by a plus c upon a square plus c square. Finally I am having my dear friends, what I will have, alpha is equal to 2 alpha will be equal to 2b a plus c multiplied by a square plus c square. यहाँ से आपको मिला alpha is equal to b multiplied by a plus c divided by a square plus c square. Now this alpha is a root of this equation. एक मिनट, a square plus c square क्यों होगा भाई? b by a है ना, a square plus b square होगा. This is a square plus b square. That was my mistake. So divided by a square plus b square. ठीक है भाई. alpha is the root of the equation. Put alpha here. और देखो बाद में क्या मिलता है. You can solve the question in any ways you want. I am not solving the question because we had solved similar questions while discussing the theory. So I am not solving this question for you. Right? Moving to the next question. No, sir. What no, sir? समझा नहीं मैं. What you are saying, no, sir? Do you want to say that I have not solved such type of question in the theory? Okay. Question number C1 to C4, C1 to C6, C4, C5 कहाँ है भाई? C5 is गायब. Basically, it is a printing mistake in your book also. So C1 to C6. Any doubt in any question? Sir, C6. C6. So that the roots of the equation are real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये प्रूफ करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यू हैव टू प्रूव दैट योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होगा ना, इक्वल में तो क्यों बेटा?
क्यों बेटा डिस्टिंक्ट में, अच्छा हाँ ग्रेटर देन जीरो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो, आई एम सॉरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 दैट इज a स्क्वायर प्लस 16। अब बेटा ये a स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, 16 इज फॉलोड बाय 16 से पहले पॉजिटिव साइन है, तो ये जो नंबर है a स्क्वायर प्लस 16 ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट इज व्हाई दिस d इज ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर a स्क्वायर माइनस 16 होता तो मैं कह सकता था कि दिस d विल बी इक्वल टू जीरो, बट दिस इज a स्क्वायर प्लस 16, a भी कोई रियल नंबर होगा तो ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस 16 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। दैट इज व्हाई d is always greater than zero. That is why the roots of this equation will be real and distinct. All right. अगर वो -16 होता सर तो आप कैसे बता सकते थे कि वो -16 होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता बेटा, -16 होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। चलिए आगे चलिए, D1 to D5। चल No doubt, sir. फाइन। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव। बताओ भाई, A1 to A5। सर A4। A4। अच्छा जी, A4 आपको पूछना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, अगर इसको इधर लेकर गए तो 9। ठीक है, बदमाशी की जाए या डायरेक्टली सॉल्व किया जाए, जो बोलो। तो डायरेक्टली के अलावा वाला ऑप्शन। बदमाशी बोलो ना, एक काम करो श्रेय, व्हाट यू आर सेइंग, शुड आई सॉल्व इट डायरेक्टली और शुड वी मैनिपुलेट समथिंग? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट कर, चलो चलो मैनिपुलेट करके देखते हैं। देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। दीज थिंग्स caution, these methods depend upon question to question, and as the time will pass, if you question more, if you practice more questions, you can also decide something. मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इस वाले टर्म को इधर भेज रहा हूं और इस वाले टर्म को इधर भेज रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? How dare you to do like this? Because in the denominator I am getting x square minus 9x in both the terms. लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 9x मिल रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x मिल रहा है। उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे मिल रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस विल बी x minus 1 upon x minus 2 plus of x minus 6 upon x minus 7 will be equal to x minus 5 upon x minus 6, x minus 5 upon x minus 6 plus x minus 2 upon x minus 3। हालांकि शायद माइनस करते तो फायदा होता, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाते, बट ठीक है, अब तो कर दिया, अब तो चालू कर दिया क्वेश्चन, तो देखो क्या होता है। माय लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम x square minus 8x plus 1 plus 7 plus x square minus 8x plus 12 divided by x square minus 9x plus 14। ठीक है, my right hand side will become x square minus 8x plus 15, okay, and plus of x square minus 8x plus 12 divided by x square minus 9x plus 18।
अच्छी बात है ये। चलो देखते क्या कर सकते हैं आगे। So finally what I can write, थोड़ी देर के लिए just to avoid the confusion, let us assume x square minus 8x को अपन ने a मान लिया और x square minus 9x को b मान लिया, बाद में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास बचता है a plus 7 plus a plus 12, that is it will be 2a upon 19. Finally I am getting 2a plus 19 divided by b plus 14 is equal to लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, 2a plus 27 डिवाइडेड बाय b plus 18। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जस्ट लेट अस ट्राई टू डू दैट। अगर कोई और मेथड होगा देन आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मेथड में हम लोग फंस गए हैं, लेकिन फंस गए हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। देखो चलो देखते हैं क्या होता है। आई विल हैव 2ab plus 19b plus 36a plus 19 into 18 whatever it will be, that will be equal to 2ab plus 28a plus 28a, 2ab plus 28a plus 27b plus of 27 into 14। ठीक है सर, ये मिल गया मेरे को। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया। फाइनली आई एम हैविंग दिस थिंग 8b is equal to 8b is equal to 8a, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 19 into 18 minus 27 into 14, what is the value you are getting? Please tell me quickly. What is the value of 19 into 18 plus 27 into 14? Please tell me quickly. क्या कर रहे हो यार? -36। कितना आया? -36। तो शायद इसका एक बहुत इजी मतलब वे से कर सकते हैं, मैंने वैसे किया अलग वे से। देख लेते हैं बेटा, बट फिलहाल व्हाट आई फील दैट दिस मेथड इज नॉट वर्किंग। यहाँ से आप क्या करो, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इन दोनों को जो भी वैल्यू आती है उसको पुट करो, ए और बी की वापस से वैल्यू पुट करो, यू विल गेट ए सिंपल इक्वेशन, उसको सॉल्व कर देना, यू विल गेट ए वैल्यू। बट दिस मेथड इज नॉट वर्किंग, this method is not working. Instead of making this our calculation simpler, it has complicated our calculation. That is why I said that it can work and it cannot work. Instead of that, what we can do is, that would have been more simpler. What we can do is, instead of that, what we can do is, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं वो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो व्हाट आई विल डू हियर, स्ट्रेट अवे आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 will be equal divided by x square minus 5x plus 6 will be equal to, यहाँ पे क्या आ रहा है, x square minus 12x plus 35 minus of x square minus 12x plus 36, अब divided by x square minus 13x plus 42। अब क्या करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो, एंड फाइनली जो भी आपका टर्म बच रहा है ट्रांसपोज करके यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, बाय दैट वे आल्सो यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। सर इससे भी इजी एक वे है। ओके, व्हाट, टेल मी। सर मैंने ऐसे किया सर, जैसे कि x-1 होल अपन x-2 जो टर्म है सर, उसको पहले मैंने x-2 प्लस 1 होल अपन x-2 सर, ऐसे हर टर्म को पहले डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली ऐसे सेट किया सर। फिर जो
कट जैसे कि सर x माइनस टू प्लस वन को होल अपन x माइनस टू को सर ऐसे सेपरेट कर दिया, x माइनस टू अपन x माइनस टू प्लस वन अपन x माइनस टू। सर ऐसे हर टर्म को सेपरेट करके सर जो पहले फॉर फर्स्ट केस के एग्जांपल में x माइनस टू अपन x माइनस टू कट के सर वन हो गया, तो सर ऐसे सारे वन एक दूसरे से कट जाएंगे, फिर सर सिंपल सी इक्वेशन सर क्वाड्रेटिक आ जाएगी, फिर सर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सर क्वाड्रेटिक टर्म्स कट जाएंगे और सर फिर लीनियर एक इक्वेशन आ जाएगी, उसे सॉल्व करके आ जाएगा सर आंसर। See what he is saying, he is also saying a very interesting thing. What he is saying is सर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए सवाल को। कैसे सर, कैसे मॉडिफाई करेंगे? सी व्हाट ही वांट्स टू से, सर आई वांट टू राइट दिस एज, पहले एक्सप्रेशन की बात करना है, आई वांट टू राइट इट एज x minus 2 plus 1 divided by x minus 2, that is it will be 1 plus 1 upon x minus 2 minus my second expression will be 1 plus 1 upon x minus 3, right? And this will be equal to 1 plus 1 upon x minus 6 plus of, that is minus of 1 plus 1 upon x minus 7. ये इन्होंने बोला, ये इन्होंने मॉडिफिकेशन किया. सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज इक्वली करेक्ट. सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 2 minus of 1 upon x minus 3 is equal to 1 upon x minus 6 minus of 1 upon x minus 7. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ट्रांसपोज कर दो. नाउ द ट्रांसपोजिशन मेथड विल वर्क. इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर जाओ. नहीं सर, इसको सीधा, सर इसको सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x will get -1 cancelled. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x will get cancelled. Your numerator will be -1. Yes, you can do it like that also. You can do like that also. No problem. No problem. So I am leaving the question here. आपको करना क्या है, अब जिनको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या किया गया है वो सुनो. ये जो न्यूमरेटर है सर x माइनस 1, इसको मुझे x माइनस 2 बनाना है. x माइनस 2 क्यों बनाना है? क्योंकि x माइनस 2 जब मैं बनाऊंगा तो दिस थिंग विल गेट कैंसिल्ड. कैसे कैंसिल होगा सर? एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी. यूजिंग द सेम आइडेंटिटी मैंने क्या किया, ये जो x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को मैंने x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कर दिया. सो फाइनली इट विल बी x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2. ये दोनों कैंसिल होगा, ये 1 हो गया. सो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. ओके, क्वेश्चन नंबर A5. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? A5, sorry, हाँ A5. Anybody having any doubt? No sir. जिनको डाउट है वो क्या कर सकते हैं कि या तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो या x की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5. Any question in which you have doubt? No sir. So B4. B4. The sum of the reciprocal of the roots of this equation. The sum of the reciprocal of the roots of this equation. What you did? Sir, I calculated the LCM, sir, and after that, sir, I tried to do it, sir, but that LCM कैलकुलेट किया है तो क्या मिला? LCM कैलकुलेट किया तो क्या मिला बेटा, बताओ जरा, मैं भी करूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं आता. टेल मी हाउ टू डू. कैसे आपने ट्राई किया? नोबडी एल्स विल स्पीक, ओनली जील विल स्पीक. हाँ जील बताइए क्या किया आपने? टेल मी द ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू हैव डन. सर मैंने एलसीएम सर 2010x ले लिया सर. 2010x एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर में 2010x लिख दो. हाँ सर. अब यहाँ पे क्या होगा? तो पहला टर्म क्या होगा? 2009. 2009. उसके बाद कुछ होगा? 2009 सर, फिर हाँ सर 2009x होगा. x होगा पक्का? आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया? किया है तो देख के बताओ ना क्या किया है. सर एक्चुअली सर मैंने रफ में किया था सर, वो मिल नहीं रहा सर अभी.
मतलब कि नहीं किया है। क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में बैठे हुए डाउट सेशन चल रहा है एंड यू आर नॉट इवन बॉदर्ड टू कीप योर रफ कॉपी विथ यू। And then you will come and say that, sir, I am not able to understand anything. This will be 2009x plus 2009x square plus 2010x plus 1 is equal to 0. Your first step was correct, but later on you did everything incorrect. क्योंकि आपने question solve भी नहीं किया. Now this will be my equation. Now its roots are alpha and beta. I have to find the sum of the reciprocals of the root. Sum of the reciprocals of the root means I have to find 1 upon alpha plus 1 upon beta. That will give me alpha beta upon alpha plus beta. अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो. Whatever is the answer, that will be your answer. I'm not going to solve it. Next question. बीटा आएगा ना? न्यूमरेटर में अल्फा बीटा, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा आएगा और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आएगा. ठीक है. उधर ऊपर तो प्लस 2010 होना चाहिए. कहाँ पे? हाँ, तो +1 की जगह, +1 की जगह 2010 होना चाहिए. हाँ भाई, ठीक है, ठीक है. 2009x square plus 2010x plus 2010 will be equal to 0. Solve the value, put the values. You will get the value of your root alpha plus beta and alpha beta. Put कीजिए, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए. सर इसमें हम 2009 को 2010 -1 लिख कर फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं. जरूरत क्या है? कर तो सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है? तो बहुत लंबा हो जाएगा. 2010 माइनस, सुनो 2010 -1 करोगे, 2010 -1 करोगे, बट व्हाट इज द नेसेसिटी? बेकार में अब तक आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा यार. कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, बट बेकार में. व्हाट, डोंट यू थिंक इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड? देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार. हाँ सर, है ना? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. नेचर ऑफ रूट, सेक्शन सी. Any question in which you have doubt? No question. Let us move further. Then, अरे doubt आया. No doubt, sir. Okay. What problem? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ. Relation between the roots, ये हो गया. Section C, nature of the roots, no doubt. What problem? Any question in which you have doubt? Question number D1 to D5. No sir, no doubt. Jeel, have you solved these questions? I hope you have. चलो, एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया. एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं. एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं सबसे पहले. एनटीएससी प्रॉब्लम्स. ओके, एनटीएससी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. चलो भाई, देखो एनटीएससी प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1 to 10. Question number 1 to 10. 4,7. 4 and 7. 4 and 7. If one root of the equation is this, then sir, what will be another root? Sir, if one root of the equation is this, तो सर अगर पहले रूट को रेशनलाइज करो भाई. 1/3 minus √2 है. So it will not be, so this root will be 3 plus √2 upon 7. जो आपका पहला रूट है बेटा, that will be 3 plus √2 upon 7. So your next root will be 3 minus √2 upon 7. Your next root will be 3 minus √2 upon 7. एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी while we were discussing theory. In the quadratic equation ax square plus bx plus c, if a, b, c are real,
if ABC are real, जो कि हमारे साथ केस होता ही है, in most of the cases ABC are real, and if one of the root is an irrational number, if ABC are real, then our roots will always exist as conjugate pairs. Then our roots will exist as conjugate pairs. ठीक है सर. तो अगर पहला रूट मेरा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7 है, तो सर जो मेरा दूसरा रूट होगा that will be 3 minus root 2 upon 7. So one root is 3 plus root 2 upon 7, another root will be 3 minus root 2 upon 7. The sum of the roots will be how much? Sum of सर the अभी roots, आपने क्या बोला सर, एक बार रिपीट करिएगा. एक मिनट. Sum of the roots will be 6 by 7 and the product of the roots will be 3 plus root 2 multiplied by 3 minus root 2 divided by 7 divided by 49, which is equal to 7 upon 49, which is equal to 1 by 7. बेटा मैंने ये बोला कि if in a quadratic equation ax square plus bx plus c, if ABC are real numbers, if ABC are real numbers, and further if ABC are your this integers, if ABC are real numbers and ABC are integers, and if one root of the equation is a irrational number, then my another root will also be an irrational number, and the irrational numbers will exist as conjugate pairs. The irrational numbers will exist in conjugate pair. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि my roots will exist as conjugate pair, क्योंकि यहाँ पे a का जो x square का जो coefficient है, that is also a rational number, that is also an integer. This is also an integer. This is also an integer. This is also a rational integer बोल लो या rational number बोल लो, the thing is same only. Here also it is a integer, here also it is an integer, here also it is an integer. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि my roots will exist as conjugate pairs. तो sum of the roots will be equal to 6 by 7. Sum of the roots will be equal to 6 by 7. Product of the roots will be 1 by 7. So my equation will be x square minus 6 upon 7x plus 1 by 7 is equal to 0. 7x square minus 6x plus 1 is equal to 0. Option number A is the correct answer. Option number A is the correct answer. Agla question. Fifth one. If the sum of the roots of the two equations 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b. Okay, fifth one देखो भाई, fifth one क्या है? If the sum of the roots of two roots of the equation this is equal to 0, then the product of the two roots is by alpha plus beta is equal to 0 दिया हुआ है. Alpha plus beta is equal to 0 दिया हुआ है, that is one root is opposite of the other. Alpha plus beta is equal to 0 दिया हुआ है, that is one root is alpha plus beta is equal to 0 दिया हुआ है, that is alpha is equal to minus beta. That is alpha is equal to minus beta. Then what I have to find? Then I have to find the product of the two roots. दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बताना है. सबसे पहले तो इक्वेशन बनाई जाए. इक्वेशन बनाने के बाद फिर अल्फा प्लस बीटा को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है. So I will have x square, I mean x plus b plus x plus a multiplied by c is equal to x plus a multiplied by x plus b. So what I will have from here, what I will have 2cx plus abc, 2cx plus abc is equal to x square plus a plus b multiplied by x plus of ab. From here what finally what I am having, x square plus of a plus b minus 2c multiplied by x plus ab minus of abc is equal to 0. Plus ab minus of abc is equal to 0. कुछ गड़बड़ किया क्या? देख लो भाई एक बार, कुछ गड़बड़ किया क्या इक्वेशन को लिखने में? नहीं सर, सही है. सही है ना?
ठीक है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है. नाउ व्हाट आई विल हैव माय इक्वेशन. अब इक्वेशन मिल गई मेरे को. अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर दो तो a प्लस बी माइनस 2c will be equal to 0. So a plus b is equal to 2c. a plus b is equal to 2c आ गया. अब मुझसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज कितना होगा? What will be the product of the zeros? Product of the zeros will be AB minus ABC divided by 1. Product of the zeros will be AB minus ABC. अब क्या करें, a plus b is equal to 2c है तो you express c in terms of a and b. See what we are having, जो मेरे पास options दिए हुए हैं, we are having the options in terms of a and b. तो यहाँ से I will get c is equal to a plus b upon 2 and the product of the roots was ab minus abc. ab minus abc है ना, c की जगह a plus b upon 2 करो और देखो क्या आता है. whatever you will get, that will be your answer. ठीक है, perhaps it will be option number b or d if I am not wrong. Put c is equal to a plus b divided by 2 and solve, you will get your answer. ठीक है, ठीक है भाई. yes, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपने श्रेय? What was the question that you asked? 7. If the roots of the equation alpha x square plus beta x plus gamma are 1 and 2, then one root of the equation beta x square plus alpha x plus gamma will be. Okay. If the roots of the equation alpha x square plus beta x plus gamma are 1 and 2, that means x equal to 1 will also satisfy this equation and x equal to 2 will also satisfy this equation. So finally I am having alpha plus beta plus gamma is equal to 0 and 4 alpha plus 2 beta plus gamma is equal to 0. दोनों को subtract कर दो तो 3 alpha plus beta will be equal to 0 or I am getting beta is equal to minus 3 alpha. Beta is equal to minus 3 alpha, ये मुझे मिल गया. आगे क्या बोल रहे हैं? Then one of the root of the equation beta x square plus alpha x plus gamma. एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस गामा, पुट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. ट्राई करना इस क्वेश्चन को. अगर नहीं होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टर्न. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टर्न बिकॉज अगेन यू गाइज आर हैविंग क्लास in 10 minutes, so I don't want to extend. This question will take some time, so I will start from this question in the next turn. And those who have not solved, please solve the question.